নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইনছ আৰু ষ্টুডিঅত মই মৌসুমী শৰ্মা বৰুৱা প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰীত এছঅজি আৰু নুনমাটি আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ 6 জন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ নগদ ধন এখন বাইক জব্দ 40টা হেৰোইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ নগদ 3,80,000 টকা ধৃত ভৃগু সিং বৰদলৈ হিৰকজ্যোতি নাথ মোহাম্মদ হানিফ আলী ধৃত সিৰাজুল ইছলাম সুৰজ জামান শেখ মুবাৰক আলী ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আলোক গগৈ অভিযানত জব্দ 15টা চুৰি মোবাইল ফোন পুনৰবাৰ জনাইছো মহানগৰীত এছঅজি আৰু নুনমাটি আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ 6 জন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ নগদ ধন এখন বাইক জব্দ 40টা হেৰোইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ নগদ 3,80,000 টকা ধৃত ভৃগু সিং বৰদলৈ হিৰকজ্যোতি নাথ মোহাম্মদ হানিফ আলী ধৃত সিৰাজুল ইছলাম সুৰজ জামান শেখ মুবাৰক আলী ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আলোক গগৈ অভিযানত জব্দ 15টা চুৰি মোবাইল ফোন কলনী এৰিয়াত ভৃগু সিং বৰদলৈ বুলি এজন যুৱকে তেখেতৰ ঘৰত অবৈধভাৱে নাৰ্কটিক ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলি আছে বুলি এইটো লগে লগে আমি ডিচিপি ছাৰৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ তালৈ গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত কাৰাংঘৰ যেতিয়া চাৰ্চ কৰোঁতে নাৰ্কটিক্সৰ একো নাপালোঁ কিন্তু এটা চুৰি মোবাইল আৰু এখন ছাছপেক্টেড মটৰচাইকেল তেওঁৰ ঘৰত পোৱা গ'ল তেওঁক আনি যেতিয়া সোধপোছ কৰা হ'ল তেতিয়া তেওঁৰ সহযোগী হিৰকজ্যোতি নাথক দিছপুৰ থানা এৰিয়াৰ পৰা আটক কৰা হয় আটক কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰা জনা গ'ল যে তেওঁলোকে বহুত দিনৰ পৰা যোৱা 5 বছৰৰ পৰা মোবাইল স্নেটচিং আৰু চুৰি কেছত জড়িত হৈ আছে আৰু উক্ত মোবাইলবিলাক পাঠাৰকুৱাৰী জুৰিপাৰ অঞ্চলত বিক্ৰী কৰিছে যেতিয়া আমি অলকজ্যোতি ঘৰৰ যোৰাবাটত গৈ অভিযান চলাওঁ তেতিয়া তেওঁৰ ঘৰত 4টা মোবাইলৰ উপৰিও 6.25 গ্ৰামৰ হিৰোইন পোৱা যায় লগে লগে আমি হেখিনি জব্দ কৰোঁ আৰু সকলোকে আমি আটক কৰি বিগত 2 বছৰে দেশজুৰি কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে এই সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে ইতিমধ্যে দেশত ভ্যাকচিন উপলব্ধ হৈছে কিন্তু দুখজনক কথা এই যে দেশৰ জনসংখ্যাৰ অৰ্ধ সংখ্যক লোকে এতিয়াও এই ভ্যাকচিন লোৱা নাই আৰু এতিয়া এই সকল লোকক ভ্যাকচিন লবলৈ বলিউডৰ অভিনেতা সল্লু ভায়ে এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে একমাত্ৰ কোভিডৰ প্ৰতিষেধকৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে কৰোনা মহাসংকটৰ পৰা কিছু সকাহ লাভ কৰিছে এই কথাও প্ৰমাণিত হৈছে যে কোভিডক ৰোধ কৰিবলৈ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী অস্ত্ৰপাতি হৈছে কোভিডৰ প্ৰতিষেধক এই কথাৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ভ্যাকচিনেশ্যন অভিযান ইয়াৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈকে দেশৰ 114 কোটি যোগ্য নাগৰিকক কোভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়াও কিছু উৰা বাতৰিত ভুলকৈ দেশৰ এক বুজন সংখ্যক নাগৰিকেই কোভিডৰ ভ্যাকচিন লবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই চৰকাৰে আনহাতে এনে উৰা বাতৰি দূৰ কৰি সমগ্ৰ দেশতে সজাগতা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে নিউজ 18 নেটৱৰ্কেও নিৰন্তৰভাৱে দেশবাসীক ভ্যাকচিনৰ সম্পৰ্কে সজাগ কৰি আহিছে পিছে ইয়াৰ মাজতো কোভিড প্ৰতিষেধকক লৈ একাংশ লোকৰ মনত থকা আশংকা দূৰ হোৱা নাই মহাৰাষ্ট্ৰৰ উদ্ধৱ ঠাকৰে চৰকাৰে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ বলিউড ষ্টাৰ সলমান খানৰ সহযোগিতাৰ সৈতে আগবাঢ়িছে सलमान भाई का भी वीडियो हमने किया है और वीडियो के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपील की है ये अपील कोई सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है ये सभी समाजों के लिए সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে এতিয়া বুজি উঠিছে যে কোভিড মহামাৰী ভ্যাকচিনেশ্যন অবিহনে কাবু কৰিব পৰা নাযাব আৰু এই কথাষাৰিয়ে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ সকলোৱে সজাগতাৰ মাধ্যমেৰে সাধাৰণ নাগৰিকলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অৱশ্যে এতিয়াও বহু লোকে কোভিডৰ ভ্যাকচিন লবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই এনে পৰিস্থিতিতে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে বলিউডৰ ভাইজান সলমান খানৰ সহায় লৈছে যিগৰাকী অভিনেতাৰ অনুৰাগী সমগ্ৰ দেশজুৰি আছে সকলোকে ভ্যাকচিন লবলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ সলমান খানে কৰা আহ্বানো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো তেওঁ নিজেও সময়মতেই ভ্যাকচিনৰ 2 পালি ডোজ গ্ৰহণ কৰিছে सबसे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं
कि कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत बातें ना फैलाएं। वैक्सीन लगाकर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि आपके परिवार, समाज और देश को भी सुरक्षित रखने में योगदान दे रहे हो। আশা কৰা হৈছে বলিউডৰ দবং খানৰ এনে আহ্বানে ৰাইজক কোভিড টিকাকৰণৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে অধিক ভালদৰে বুজাই তুলিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। আজি বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতিবিদ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ 28তম মৃত্যু বাৰ্ষিকী। লোক সংস্কৃতিবিদগৰাকীৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰস্থিত আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থা অসম চমুকৈ আবিলেকত উদযাপন কৰা হৈছে প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ স্মৃতি দিৱস। অসম জনকৃষ্টি সমাজ আৰু আবিলেকৰ যুটীয়া উদ্যোগত উদযাপন কৰা হৈছে প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ স্মৃতি দিৱস। স্মৃতি দিৱসত মুখ্য অতিথি ৰূপে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ ননী গোপাল মহন্ত উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা প্ৰকৃতি আৰু পৰম্পৰা বিষয়ক স্মাৰক বক্তৃতা। এই স্মাৰক বক্তৃতাৰ বক্তাৰূপে বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশিষ্ট অধ্যাপক অৱনী কুমাৰ ভাগৱতীয়ে। অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশগ্ৰহণ কৰে। নগাঁৱৰ নৰ্তম গাঁৱৰ এটি ভাড়াঘৰত ৰাসৰ নিশা চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড। ঘৰত মানুহ নথকাৰ সুযোগ লৈ নিশা চুৰ সোমাইছিল অংকুৰ শৰ্মা নামৰ এজনৰ ঘৰত। পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে পৰিয়ালটো কেইবাদিনো ধৰি আছিলগৈ বৰহমপুৰস্থিত পিতৃগৃহত। চুৰে লুটিলে 1.5 লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে 50,000 টকাৰ নগদ ধন। লুটিলে 2টা চিলিণ্ডাৰ, কাঁহৰ বাচন বৰ্তনসহ CCTV কেমেৰা আৰু কম্পিউটাৰ। কন্যাৰ অন্নপ্ৰসনৰ বাবে পুৱা অংকুৰ শৰ্মাৰ ভাড়াঘৰত উপস্থিত হওঁতেহে ওপৰলৈ আহে সমগ্ৰ চুৰিকাণ্ডটি। মৰিগাঁও আৰু জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে শিলভঙা অঞ্চলৰ পৰা আটক কৰে 2 তীৰখেল বেপাৰী মফিজুদ্দিন আৰু ফজল উদ্দিনক। তীৰৰ ব্যৱসায়ী দুজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে নগদ 40,000 টকা, বহুতো তীৰৰ টিকট আৰু কেইবাটাও বেংক পাছবুক। ইফালে আন এক অভিযানত একে অঞ্চলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে হুছেইন আলীসহ আন এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক। ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ পৰা 8টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইফালে ডিমৌত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে সৰব চাহ শ্ৰমিক। ডিমৌ সমীপৰ আঠাবাৰী চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক আৰু লক্ষ্মী টি কোম্পানীৰ লগতে তৈল কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে মুৰ্দাবাদ ধ্বনি চাহ শ্ৰমিকসকলৰ। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে ডিমৌ সমীপৰ আঠাবাৰী চাহ বাগিচাত এটা তৈল খাট নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চাহ গছ উচ্ছেদ কৰিবলৈ বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সৰব কলিয়াপানী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजिंदर सिंह और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सोनिया, जो सांकेतिक भाषा में खबरों को आप तक पहुंचाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के समापन समारोह में लेंगे हिस्सा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए उपकरणों को सशस्त्र बलों के प्रमुखों को सौंपेंगे। यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारे के झांसी खंड में 400 करोड़ रुपए की परियोजना का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी आज बुंदेलखंड के लोगों को देंगे कई सौगात। पानी की कमी को दूर करने की परियोजनाओं समेत 6,250 करोड़ रुपए से भी अधिक के विकास प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ। 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की रखेंगे आधारशिला। अटल एकता पार्क का भी करेंगे होगा उद्घाटन। कर्नाटक में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। राज्य सरकार ने 2 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेजों में की छुट्टी की घोषणा। मुख्यमंत्री आज जिलाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए राज्य में भारी बारिश की जताई आशंका। बेंगलुरु शहर के लिए येलो अलर्ट जारी। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती आज। कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाती है गुरु नानक जयंती। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी देशवासियों को बधाई।
और कल से गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी का होगा आगाज। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया जाएगा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। आयोजन में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लेंगे हिस्सा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज रांची में खेला जाएगा टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला। भारत ने पहला टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज में बनाई है 1-0 की बढ़त। आज का मैच जीतकर टीम इंडिया की सीरीज अपने नाम करने की होगी कोशिश। और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झांसी में राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व पर रक्षा क्षेत्र की कई पहलों का शुभारंभ करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी औपचारिक रूप से स्वदेश में डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन और नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सशस्त्र बल सेवा प्रमुखों को सौंपेंगे। पीएम मोदी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए प्रणोदय प्रणाली का उत्पादन करने के लिए यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड पर 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी झांसी में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन को लॉन्च करेंगे और एसोसिएशन के पहले सदस्य बनेंगे। पीएम मोदी एक पूर्व एनसीसी कैडेट हैं। पीएम मोदी देश के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय समर स्मारक पर डिजिटल कियोस्क का शुभारंभ और राष्ट्रीय समर स्मारक मोबाइल ऐप की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड स्थित महोबा और झांसी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पेयजल सहित कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री महोबा को विकास की कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इन परियोजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना शामिल हैं। पीएम झांसी के गरौठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से किया जा रहा है और ये सस्ती बिजली एवं ग्रिड स्थिरता के रूप में दोहरे लाभ प्रदान करने में मदद करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी महोबा में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आज भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। कर्नाटक में हो रही लगातार बारिश की वजह से राज्य सरकार ने बेंगलुरु के ग्रामीण जिलों में 2 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद रखने की घोषणा की है। राज्य में हो रही भारी बारिश की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ आज दोपहर 1 बजे बैठक बुलाई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के बेंगलुरु केंद्र ने शहर में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव वाले क्षेत्र के कारण राज्य में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 115 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान के 307वें दिन शाम 7 बजे तक 65 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश भर में आज गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, गुरु नानक देव जी की जयंती के शुभ अवसर पर मैं भारत और विदेशों में बसे सभी भारतीयों, विशेष रूप से सिख समुदाय के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। गुरु नानक देव के जीवन और शिक्षाओं में प्रेम, करुणा और बलिदान का निहित संदेश मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा देता है। उनके विचार हमें अपने जीवन में शांति और भाईचारे के आदर्शों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गुरु नानक देव ने एक साधारण गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख प्राप्त करने के साधन के रूप में सेवा पर जोर दिया। आइए हम सभी गुरु नानक देव जी के पद चिन्हों पर चलें और अपने समाज में सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करें।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरु नानक जयंती पर राष्ट्र को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी की जयंती के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी अपने सदाचारी जीवन के माध्यम से सत्य, करुणा और नेकी की प्रतिमूर्ति थे। उनकी दिव्य शिक्षाएं हमें नेकी के मार्ग पर चलने तथा जाति, संप्रदाय या धर्म से हटकर सभी मनुष्यों के प्रति आदर भाव रखने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। गुरु नानक देव जी ने हमें नैतिकता के रास्ते पर चलना भी सिखाया। वो भारत के उदात्त आध्यात्मिक लोकाचार के एक यशस्वी प्रचारक थे, जिन्होंने आम आदमी को आध्यात्मिकता से जोड़कर सही मायनों में धर्म को जन जन तक पहुंचाया। मैं कामना करता हूं कि उनका शाश्वत संदेश न्याय, करुणा और सौहार्द से परिपूर्ण समाज का निर्माण करने में हमारा मार्गदर्शन करता रहे। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मेला इस महीने की 27 तारीख तक जारी रहेगा। मेले के पहले 5 दिन व्यापारियों के लिए थे। इस वर्ष मेले का विषय है आत्मनिर्भर भारत। इसमें बिहार प्रतिभागी राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस मेले में भारत और विदेशों के 1,500 स्टॉल लगाए गए हैं। मेला सुबह 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। इसके लिए 65 मेट्रो स्टेशनों के ग्राहक सुविधा केंद्रों से टिकट प्राप्त किए जा सकते हैं। मेले में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों का प्रवेश निःशुल्क होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज रांची में 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। पहले T20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। पहले T20 में भारतीय खिलाड़ियों ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था। बल्लेबाजी में कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और KL राहुल ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए फॉर्म में होने के संकेत दिए थे। वहीं गेंदबाजी में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और R अश्विन ने कीवी बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था। दूसरी तरफ T20 विश्व कप की उपविजेता न्यूजीलैंड का इरादा इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में वापसी करने का होगा। रांची में भारतीय टीम का रिकॉर्ड कीवी टीम के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। टीम इंडिया ने अब तक यहां पर एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। भारतीय टीम ने अब तक रांची में 2 T20 मैच खेले हैं और दोनों में जीत दर्ज की है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।